हाँ, now students, in last classes we have studied about data handling with pandas. Same. क्या हो गया भाई? Okay, now the thing is that कि now we'll work out on operations on rows and columns. ठीक है, rows and columns के operations पे हम लोग अब सीख. Now we'll work out on operations. ठीक है, operations means working with those rows and columns in data frame. ठीक है, or you can say that operations in data frame. डेटा फ्रेम. अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं? वी कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन. हम कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक रोज एंड कॉलम्स पे, लाइक सेलेक्टिंग, डिलीटिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग. ओके, दीज आर द मेन ऑपरेशन. देखिए, आफ्टर दिस विजुअलाइजेशन इज देयर. कल मैंने आई हैव सीन दैट I thought that this is the last topic, but when I have go through the syllabus, then this is the last topic actually. Not last topic, second last topic. Okay. So selection operation हम लोग पढ़ेंगे. We will study selection operation, add operation, delete operation, and rename operation. Okay. We perform basic operations on columns like select operation, add operation, delete, rename. देखो, ठीक है, whatever we will delete, we can delete a data. ठीक है. Okay, we can delete a data. Okay, select operation, add operation, delete operation, and rename operation. We will use the following data. Suppose that ये data हमने create किया है. ठीक है, जो हमने आपको बताया है कि how will create a data frame, that I have already told you, and then how you will convert it into the CSV file, means CSV file. चलो CSV फाइल की फुल फॉर्म बताओ. अश्मिता बताएगी. अश्मिता बताएगी. मिश्रा. अश्मिता, tell me the full form of CSV. Asmita, tell me the operation of full form of CSV. कॉमा सेपरेट वैल्यू कहाँ देखा? याद था. अच्छा, चलो कोई नहीं, विश्वास करते हैं तुम्हारा. सो नाउ CSV फाइल मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. ठीक है, वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिफाइंड डेटा फ्रेम. ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने एक डेटा फ्रेम डिफाइन किया. ठीक है, इंपोर्ट पांडास पीडी, दैट इज आइडेंटिफायर. देन एस रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे एस स्टूडेंट रिकॉर्ड कर सकते हो. दिस इज द कॉलम नेम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, एंड मोबाइल इज द सिक्स्थ कॉलम. ओके, इन these after these are the keys. ये सारी क्या हो जाएंगी? Keys हो जाएंगी. And I have also told you how you will call dictionary using list. ठीक है, how you will create a dictionary using list. So here after colon, this is the list of every student. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 students. Okay, if you will talk about index number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, so here same as this is the after colon, this is the list, then marks list, then grade list, then remark I have given, जैसे ये दो बच्चे फेल हैं. ठीक है, F. Now mobile number, these are the mobile numbers which I have given. So in this case, these are the list which I have created by using dictionary. ठीक है, list by using dictionary. ठीक, किसी को सब्जी लेनी हो तो ले लेना. ठीक है, आ गई है.
ठीक है। तो डेटा फ्रेम पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डी और एस कैपिटल लेना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और फिर इसको हमने कॉल कर दिया, जो ऊपर डिक्शनरी हमने डिफाइन की थी ये वाली, ठीक है। आई वी हैव कॉल्ड दिस ओवर हियर, दिस वन ओवर हियर, ओके। So now this df I have printed, then now you have to convert this data frame into the list, sorry, this data frame into the CSV file. तो हमने क्या फंक्शन बताया था, to underscore CSV, ठीक है। This is the function. After that you will create a bracket, then in the colon name of the file which you will want, which you whatever the file name you want to give, so that you will call over here, okay। Now after comma separation with comma, ठीक है, separation हमने define किया है। then index value false, index value false means this is the default value, it will take default value, ठीक है। I have not created any index, so it will take 0 1 2 3 and all, okay। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, ये डेटा फ्रेम जो क्रिएट हुआ इसको हमने आउटपुट ले दिया, ठीक है। व्हेन इट इज प्रिंटेड देन आफ्टर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। ये फॉर्मेशन हमारा डेटा का बन गया, ठीक है। हमने नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन की, ठीक है। हाउ विल सेलेक्ट द डेटा, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि व्हेन यू विल प्रिंट और सेलेक्ट द डेटा, तो आप क्या करते थे कि आप ऐसे करते थे कि व्हेन यू विल सपोज दैट आप कोई भी लिस्ट में से किसी एक पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करते थे, देन यू विल व्हाट यू विल डू, यू विल राइट एल और वैल्यू, या फिर जो भी हमारा इंडेक्स नंबर है, ऐसे तो करते थे, यही करते थे ना, याद है नहीं याद है, हाँ। सो सेम थिंग हियर ऑल्सो, df s name, ठीक है, s name student name, this can also be done by using df dot s name, ठीक है। हम s name यूज करेंगे select के लिए, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फाइल ये इंपोर्ट कर ली, ठीक है, df dot pd read csv underscore csv, ये हमने फाइल क्रिएट करी थी ना अभी, student details dot csv, so it is we have called by using read underscore csv, okay। So now when you will select, if you want to select one column, then what you will do, simple, same as above I have told you। तो हमने कहा कि एक कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, तो प्रिंट, यहाँ पे ये तो एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट कर लिया, ये वाला स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट। देन व्हाट, प्रिंट df, df मतलब जो डेटा फ्रेम है, एंड दिस इज sid, मतलब दिस इज व्हाट, कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम आई हैव गिवन। तो पहला प्रिंट अगर आप देखें तो दिस इज द प्रिंट ऑफ दिस, ठीक है, ये है, इसको प्रिंट किया गया है, दिस इज द प्रिंट, तो कॉलम नेम सिड प्रिंट किया गया, तो स्टूडेंट आईडी, तो दीज आर द आईडीज, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नाउ सेम एज इफ यू वांट टू प्रिंट अ मल्टीपल कॉलम, अगर आप सॉरी 2 कॉलम, चलो बात करते हैं अभी, 2 कॉलम केवल प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करोगे, एस नेम सेम इन द ब्रैकेट, तो हम यहाँ पे देखो डबल ब्रैकेट लगा हुआ है, ये देखो है, आफ्टर df 2 ब्रैकेट्स आर देयर, एस नेम एंड देन कॉमा एस मार्क, फिर क्लोज किया हमने डबल ब्रैकेट। जितने ब्रैकेट्स ओपन करते हैं वी हैव टू क्लोज नंबर ऑफ ब्रैकेट इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रैकेट, नंबर ऑफ ब्रैकेट व्हिच यू विल ओपन, दैट नंबर ऑफ ब्रैकेट शुड बी क्लोज, then it will not give error, rather it will give the error। so यहाँ the bracket is closed, okay। now select all rows, अब हमें सारी रो सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ रोज, तो हमने क्या लिखेंगे उसके लिए, df विद इन द ब्रैकेट df डॉट कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स का टर्म यूज करेंगे, कॉलम्स विद इन द ब्रैकेट 1 2 4, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप 5 दोगे तभी आप 4 ही सेलेक्ट होंगे, इट विल गिव द एरर, ठीक है। तो 1 to 4 हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से डेटा प्रिंट हो रहा है, 1 to 4 मतलब यहाँ पे 1 to 4 एक तरीके से स्लाइसिंग की गई है, तो यहाँ पे हमने देखो फोन नंबर नहीं लिया है, तो अगर हम 5 कर देंगे तो यहाँ पे फोन नंबर वाला भी कॉलम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉलम ही प्रिंट हो गए हैं, समझे, क्योंकि
4 कॉलम्स में 3 कॉलम्स एक्चुअली प्रिंट हुए हैं, नॉट 4 कॉलम्स। इसमें तो कोई स्टूडेंट आईडी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। मार्क्स प्रिंट हुए, ग्रेड प्रिंट हुए, नेम प्रिंट हुआ है, आईडी नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है। फोन नंबर नहीं प्रिंट हुआ है। रीजन बिहाइंड वी हैव टेकन 1 to 4। अब स्लाइसिंग में क्या होता है, 1 इज अ स्टार्टिंग वैल्यू एंड 4 नहीं लेता है ना, थर्ड तक लेगा। 1 2 3 कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, रिमेनिंग कॉलम्स इट विल लेफ्ट। समझ में आया? अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? और भी कोई बोल दो भैया, यहाँ है क्लियर, नहीं है क्लियर, ठीक है। अब वी आर ओके, नाउ वी आर वर्किंग ऑन एडिशन ऑफ कॉलम, ठीक है। हम कॉलम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन ऑपरेशन क्या है? इन ऑर्डर टू ऐड कॉलम, अगर हम कॉलम ऐड की बात करें, ऐड अ कॉलम, ठीक है। पांडास डेटा फ्रेम वी कैन डिक्लेयर अ न्यू लिस्ट एज अ कॉलम, ठीक है। एक हम न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे मैं df pd.read, जैसे जब भी हम when you will create going to take any action, then you have to read, first of all you have to read that particular CSV file which you have created or existing CSV file if it is existed, okay, or you can create also। अगर आपको create करने को कहा जाए तो first of all you will create then read, okay। first of all create, आप अगर इसकी प्रोसेस को समझे अच्छे से तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, देन हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। अब क्रिएट किसके थ्रू करेंगे, किसके थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू करेंगे और लिस्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। और कन्वर्ट किसके थ्रू करेंगे, टू अंडरस्कोर CSV के थ्रू करेंगे। फिर रीड किसके थ्रू करेंगे, रीड अंडरस्कोर CSV के थ्रू करेंगे। फिर प्रिंट किसके थ्रू करेंगे, प्रिंट के थ्रू करेंगे। समझ में आ गया? अंडरस्टूड और नॉट? हाँ हाँ बेटा, read to read the particular that particular CSV file which you have created or existing CSV file, जो भी फाइल आपकी एग्जिस्ट करती है इन डेटा, that's why we have to read। हमने क्रिएट तो कर ली बट रीड नहीं की। रीड करने के लिए हमें लोड करना पड़ता है उस फाइल को, तो उसके लिए हम लोग रीड यूज करेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बताओ। नहीं करेंगे तो फिर उसमें वर्किंग कैसे करोगे? सपोज दैट तुम्हारे पास थाली है, उसमें कटोरी है, तुमको मम्मी ने रोटी दे दी, अब दाल नहीं दी, ठीक है। दाल मम्मी ने बनाई हुई है बट दी नहीं, तो व्हाट यू विल डू, मम्मा कह रही है लो दाल रोटी खा लो, तो यू हैव नॉट, दाल नहीं है ना आपके पास, तो खाओगे कैसे, ठीक है। तो दाल आपको लोड करनी पड़ेगी, किसमें लोड करनी पड़ेगी, कटोरी में लोड करनी पड़ेगी मम्मी को, ठीक है। अब समझ आया? अब भी समझ आया तो बेकार है, ठीक है। तो एड्रेस हमने क्या किया, एड्रेस। अब वो कह रहा है हमें एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है। ऐड न्यू कॉलम एड्रेस कॉलम में ऐड करना है। देन हाउ विल यू ऐड द एड्रेस, तो हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट करी, उसमें सारे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमने उनको एड्रेस सबके ऐड कर दी, जितने अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी पहले वहां पे वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी उतने ही नंबर लिस्ट हमने ऐड कर दी। अब ऐड कैसे करना होता है, हम लिखेंगे df और एड्रेस, ठीक है। जो भी कॉलम नेम होगा उसको हम एड्रेस, उसका कॉलम नेम, दिस इज द कॉलम नेम, ठीक है। क्या है, कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम, और यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। एड्रेस उसका जो भी हमने ये लिस्ट बनाई है, दैट लिस्ट, जो भी लिस्ट नेम होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें अच्छे से, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम नेम, फिर विद इन द ब्रैकेट कॉलम नेम, okay, in the bracket, and then list name, ठीक है। समझना, लिस्ट नेम इस तरीके से, दिस इज द फॉर्मेशन दैट इफ यू वांट टू ऐड अ कॉलम, अगर आप ऐड करना चाहते हो कॉलम को, इस तरीके से आप कॉलम को ऐड करोगे। समझना?
this the screenshots are there, that is the actual program. ठीक है, actual programs, not that experimental program. ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े. Now this is print. ठीक है, आफ्टर दैट प्रिंट हो गया, ये हमारा प्रिंट हो गया. ठीक है. नाउ अब कॉलम डिलीशन की बात करते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट कॉलम डिलीशन. ठीक है. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग होता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना. कॉलम कैन बी डिलीटेड बाय ड्रॉपिंग कॉलम. ठीक है, कॉलम को ड्रॉप करके हम डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रॉप. ठीक है, याद आ गया ड्रॉप कहाँ यूज होता था? वेयर वी हैव यूज ड्रॉप लास्ट? एसक्यूएल में. ठीक है. हाँ, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, विल यूज डेटा फ्रेम, ड्रॉप, लेबल्स, अगर कोई नहीं है लेबल तो नन, एक्सेस 0, इंडेक्स नन, कॉलम नन, इन प्लेस फॉल्स. तो ये एक सिंटेक्स है, इसलिए यहाँ पे 0 नन इस तरीके से लिखा गया है. इसका फंक्शन होगा लेबल्स स्ट्रिंग और लिस्ट, स्ट्रिंग रेफरिंग रो और कॉलम नेम. लेबल क्या होगा? ये रो या फिर कॉलम नेम को के लिए होगा. जो भी लेबल का नाम होगा वो कॉलम नेम होगा. एक्सेस होगा इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू. अगर कोई इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग रीड करना चाह रहे हैं तो, जैसे रो 1 कॉलम और 4 कॉलम. ठीक है. फिर क्या कह रहा है? इंडेक्स और कॉलम, सिंगल लेबल और लिस्ट. अगर एक यूज करना है तो विल यूज इंडेक्स. इन प्लेस मतलब मेक चेंजेस इन ओरिजिनल डेटा फ्रेम इफ ट्रू. अगर कोई चेंजेस करना है तो हम इसको यूज करेंगे. अब इसका एग्जांपल देखो, किसी तो समझ में आएगा नहीं आता. अब देखो, हियर आई हैव रीड द एग्जिस्टिंग फाइल. यहाँ तक समझाने की जरूरत नहीं है, ये कंटेंट यहाँ प्रिंट कर दिया. ठीक है, ये पहले का डेटा फ्रेम मैंने प्रिंट किया, दैट इज द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम. ठीक है. नाउ सी, अब क्या यूज किया? df1 df डॉट डेटा फ्रेम, जो भी हमारा डेटा फ्रेम है, df डॉट ड्रॉप. ठीक है, ड्रॉप. अब देखिए कॉलम, ये कॉलम नेम है, कॉलम नेम. ठीक है. cn मोबाइल एक्सेस 1. ठीक है, कॉलम नेम क्या है? मोबाइल एक्सेस 1. एक्सेस 1 मतलब ये 1 एक्सेस, फर्स्ट एक्सेस हो जाए. एक कॉलम की बात कर, सेकंड एक्सेस थर्ड एक्सेस की बात नहीं कर रहा. इन प्लेस ट्रू मतलब चेंज कर दो. ये हमेशा इन प्लेस जो रहेगा वो ट्रू रहेगा. ठीक है, समझा? तो अगर फॉल्स कर देंगे तो इट विल नॉट डिलीट. ठीक है. तो इन प्लेस क्या काम करता है? इंडेक्स ओरिजिनल डेटा को चेंज कर देता है, मतलब ओरिजिनल डेटा को सेफ रखता है, और जो भी चेंजेस होते हैं वो एग्जिस्टिंग डेटा होता है. बिट्टू नेशनल एंथम मत गाओ. कल पढ़ाते हैं बबलू की बिटिया रोज इतनी करी भे खूब गाना. नाउ सी. ठीक है, हमारी बेटी इंटरनेशनल एंथम गाती है. आवाज खूब. नाउ सी, as shown on that output images, the new output doesn't have the path. ठीक है. Column, those values were dropped since axis was set equal to 1. ठीक है, and the changes were made in the original data frame since in place was true. अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम true रखते हैं तो जो ओरिजिनल डेटा है जो हमने इनपुट किया है उसमें चेंज हो जाएगा. अगर हम इसको false रखते हैं, suppose that if I will this will false, तो ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, बट इट विल द आउटपुट व्हेन यू विल गेट, तो एट दैट टाइम वो रिजल्ट मिलेगा आपको. इतना समझ आया? नहीं आया? कोई डाउट हो यहाँ पे मुझे बताओ. इफ एनी डाउट आस्क. नहीं, इफ एनी डाउट देन आस्क. एक्सेस बताया ना, नंबर ऑफ एक्सेस. ठीक है, सिंस एक्सेस वाज सेट इक्वल टू 1. ठीक है, एक एक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, सिंगल 1 एक्सेस, फर्स्ट एक्सेस. देखो ये डेटा जो होता है फर्स्ट एक्सेस पे ही डिलीट लाइक करता है. ठीक है, एक्सेस मतलब 2D डेटा है ना हमारा ये. ठीक है, दिस इज द 2D डेटा. ठीक है, जब हम दोनों एक्सेस की बात करेंगे तब पूरी टेबल की बात करेंगे. जब 1 एक्सेस की बात करेंगे तो सिंगल टेबल की बात करेंगे.
ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, जिस भी टाइप की वैल्यू होगी, कहाँ गया मेरा पॉइंटर, ना सी इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू, जीरो इंडेक्स फॉर रोज, ठीक है, अगर हमारा रो है तो क्या होगा, जीरो इंडेक्स की बात करेंगे, जीरो इंडेक्स, जब कॉलम की बात करेंगे तो इंडेक्स हमारा क्या रहेगा 1, अब सुना है, मतलब EMI टेबल है, ठीक है, EMI टेबल है, ठीक है। अब हमारी जो हमारे रोज होती हैं दैट इज जीरो एक्सेस उसको मानते हैं हम लोग, और देन कॉलम को बोलते हैं वन एक्सेस, समझ हैं। व्हेन द इंडेक्स वैल्यू when the access value will be 0 then we will delete the rows, and when the access value is 1 then at the time we will delete columns. Now clear? हाँ, ठीक है। Now see next rename of column, अब बात करते हैं रीनेमिंग की। रीनेमिंग ऑफ कॉलम मीन्स renaming the column in a pandas data frame by using rename option, ठीक है, हम rename फंक्शन को यूज करते हैं फॉर renaming the column, ठीक है। नाउ सेम यहाँ पे तक तो सेम है, ठीक है, आई विल नॉट एक्सप्लेन अ लॉट ओवर हियर, ठीक है। df प्रिंट कर लिया, दिस इज द एग्जिस्टिंग डेटा विच इज प्रेजेंट, ओके। नाउ df डेटा फ्रेम डॉट रीनेम, विल यूज रीनेम, देन कॉलम्स यूज करेंगे। अब अगर मल्टीपल कॉलम्स यूज करने, अगर केवल कॉलम यूज कर एक कॉलम यूज कर रहे हो तो एक कॉलम क्या मतलब जितने भी कॉलम, जो भी कॉलम रीनेम करोगे वो फर्स्ट ओल्ड नेम, दिस इज द ओल्ड नेम एंड दिस इज द न्यू नेम, ठीक है, दिस इज द ओल्ड नेम एंड दिस इज द न्यू नेम, ओके। और देखो इन प्लेस ट्रू, ठीक है ना, मेक चेंजेस इन द ओरिजिनल डेटा फ्रेम इफ ट्रू, ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा में आपका चेंजेस हो जाएगा, समझ आया नहीं आया। rename then bracket then columns यूज करेंगे, ठीक है, इक्वल टू मोबाइल कोलन नंबर, तो यार न्यू नेम हो गया, ये ओल्ड नेम हो गया, देन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे जो ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे वो कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, ठीक है, और देन इन प्लेस ट्रू, क्लियर, नहीं समझा, ठीक है। तो ये हमारा चेंजेस हो गया, ठीक है, ये मोबाइल नंबर हमारा ये हो गया, और इसको मोबाइल नंबर पहले क्या था, मोबाइल था, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट, अब ऑपरेशंस ऑन रोज की बात करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑपरेशन ऑन रोज, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रोज, यू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन रोज, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है, दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। सेलेक्ट रो ऑपरेशन, ऐड रो, डिलीट रो, रीनेम रो, सारे काम वही होते हैं, ठीक है। बिफोर यू कैन गेट टू द सॉल्यूशन, इट्स फर्स्ट गुड आइडिया टू ग्रेस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ LOC। LOC बताया था, याद है, एंड हाउ टू इट डिफर फ्रॉम द इंडेक्सिंग एट्रीब्यूट्स ILOC, ठीक है। ILOC और LOC दो चीजें बताई थी मैंने, ठीक है। LOC मीन्स लोकेशन पे वर्कआउट करती है, ठीक है, और ILOC विल वर्क ऑन इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। Works on labels names of your index. This means that if you give LOC2, you look for the values of your data frame that have on an index labeled 2, ठीक है। Works on position in your index. This means that if you give in LOC2, you look for the values of your data that are index 2, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर पे बात करती है और ये लोकेशन पे बात करती है, ठीक है। ये देखो दिया गया है, गन में फर्क ही पता चल जाएगा। LOC डेटा डॉट LOC, ठीक है, जो भी डेटा ऊपर है डेटा डॉट LOC 5, तो ऊपर जो डेटा हमने CSV फाइल दी है उसी के फंक्शन सही है, डेटा डॉट LOC, तो डेटा डॉट LOC में जितने भी लोकेशन है, ठीक है, फिफ्थ लोकेशन पे जो डेटा है वो पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ लोकेशन पे, फिफ्थ लोकेशन मतलब द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जैसे हमने कहा रो की बात हो रही है, ठीक है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, तो फिफ्थ लोकेशन की बात करें तो ऊपर डेटा देखो, अच्छा फिफ्थ यहाँ पे है अमजद, ये 0 1 2 3 4 5,
बात हो रही 5, किसकी बात कर रही, लोकेशन की बात कर रही, एग्जैक्ट लोकेशन पे, ठीक है ना हमजद, ठीक है। स्टूडेंट आईडी ये है और नेम ये है, मार्क ये है, तो पूरी रो को एक वर्टिकल फॉर्मेट में आपको दे देगा, डॉट LOC एंड देन लोकेशन, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि रिट्रीविंग रो विद मल्टीपल पैरामीटर्स, अगर मल्टीपल पैरामीटर्स की बात करें तो हम यहाँ पे 5 और 7 जैसे कॉमा लगा के दे सकते हैं, 6 पहले था और 7 बाद में दिया, इस तरीके से इसका आउटपुट है, ठीक है। तो थर्ड देन डेटा देन डॉट LOC देन 5, 7, ठीक है, इस तरीके से हमने दे दिया। फिर हमने क्या किया, अब वहां पे तो दो पर्टिकुलर सेलेक्टिव डेटा था, यहाँ पे 5, 7 सेलेक्टिव डेटा हमने यूज किया। अब हमने क्या किया, एक तरीके से हमने 3 से 4 तक, मतलब 5th लोकेशन तक का, 4th लोकेशन तक का, 3rd से 5th तक का, ठीक है। अब 5th मतलब है 3rd लोकेशन, 4th लोकेशन एंड 5th लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे 3rd, 4th, 5th, तो जो आपका वहां पे डिफाइन हो रहा होगा, ठीक है, वट एवर द पर्टिकुलर थिंग इज डिफाइंड, जो हमारा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होगा वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके के फॉर्म में, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो अगर हमने 0 यहाँ पे कोलन लगा के और 4 लिया, ठीक है, 4 हमने लिया, देन द 0 इट विल काउंट 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, ऑटोमेटिकली 0 से काउंट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 0, समझना। अगर हम इसको इधर कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको इधर कर देते हैं 4, देन कॉलन यहाँ नहीं लगाते हैं कुछ भी, तो 4 से स्टार्ट करेगा, लास्ट के सारी वैल्यूज तक देगा, यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर, तो दोनों रिवर्स ऑर्डर होते हैं। अब ILOC समझो, ILOC क्या काम करती है कि जो भी 2 रोज अगर सपोज हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है, अगर हमें 2 रोज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो हमने कहा क्या कहेंगे कि मल्टीपल रोज की बात करें तो रो स्लाइसिंग हमें और कॉलम स्लाइसिंग, ठीक है, हमें डिफाइन करना पड़ता है इसमें, दोनों रो स्लाइसिंग एंड कॉलम स्लाइसिंग, किस रो से रो की डिटेल्स चाहिए और कॉलम्स कितने चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो df.iloc ब्रैकेट 0 to 2, मतलब हमें अब यहाँ पे एक और चीज जानने का, LOC में एग्जैक्ट नंबर देता है, मतलब हमने लिखा LOC में क्या लिखा था यहाँ पे 0 to 2, ठीक है, यहाँ पे 0 to LOC में अगर यहाँ पे LOC होता है, इसकी जगह सपोज है LOC 0 to 2 होता, तो एक तो वो कंप्लीट फुल डेटा देता आपको, सेकेंड आपका वो क्या करता, यहाँ पे जैसे इसका जो आउटपुट आया है दैट इज 0, 1, तो यहाँ पे 2 भी होता, that also included in LOC, but in ILOC it will not included. Not understood? हाँ, समझा नहीं आया? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉलम नेम हमने दिया 0 to 2 एंड सॉरी कॉलम रो इंडेक्स दिया दैट इज 0 to 2 एंड कॉलम इंडेक्स दिया 1 to 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फर्स्ट कॉलम प्रिंट हुआ और 0 कॉलम तो ये हो गया, तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम नहीं दिया गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने कोई कॉलम नहीं दिया, नो रोज, डिटेल्स नहीं दी है, बस कोलन लगाया है, दैट मीन्स ऑल, इफ द वैल्यू विल बी ओनली कोलन दैट मीन्स ऑल, कॉमा 0 to 2, मतलब 0 इंडेक्स नंबर एंड 1 इंडेक्स नंबर यू विल गेट, थर्ड सेकेंड इंडेक्स नंबर है 0 इंडेक्स नंबर, 1 इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 1 इंडेक्स 1 एंड 2, ठीक है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर SID है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हुआ है, सेकेंड इंडेक्स प्रिंट है, थर्ड नहीं प्रिंट हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड, थर्ड नहीं प्रिंट हुआ है, इट विल नॉट प्रिंट, समझ आया चीज। नाउ एड रो ऑपरेशन, ठीक है, अब एडिंग कैसे करते हैं इसकी हम लोग, ठीक है, हम लोग सेम कॉन्सेप्ट है कि हम लोग रोज ऐड करना, रोज कॉल हमने पहले सबसे पहले विल कॉल द
CSV फाइल, हम सबसे पहले CSV फाइल कॉल कर लेंगे, ठीक है। देन रो 1, अब यहाँ पे क्या है, हम एक एक कॉलम का डिटेल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्रिएट रो 1 व दिस 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 दिस, ठीक है। फिर एस ग्रेड आर मार्क मोबाइल, ठीक है। ऐसे में सारी रोज यहाँ पे डिफाइन कर दूं, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज में इंक्रीज करने हैं या डिक्रीज करने, सॉरी इंक्रीज करने हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे तो ये बस डिफाइन हो गया, हमने कहा ये रो 1 और देन ये, अब इसमें जो ब्रेसेस लगेंगे वो कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस किसमें होते हैं, कर्ली ब्रेसेस किसके होते हैं, डिक्शनरी में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब CSV फाइल कॉल करेंगे, उसके बाद जस्ट आफ्टर वी विल डिफाइन अ रो 1, रो 2, रो 3, जो यहाँ पे भी ऐड करना है वी कैन ऐड अकॉर्डिंगली, मतलब दिस इज द वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। अब देखो, अब हमने रो तो डेटा फ्रेम में ऐड कर ली, ठीक है। अब सपोज दैट कॉन्केट मेथड से अगर हमें रोज ऐड करनी है तो कैसे ऐड करेंगे, इन दिस मेथड, we have to create a new data frame and concat with the older data frame, ठीक है। एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और दूसरे डेटा फ्रेम से हम कॉन्केट कर लेते हैं, मतलब कॉन्केट मतलब मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट हियर NDF इज न्यू डेटा फ्रेम, NDF एक न्यू डेटा फ्रेम है, क्रिएटेड डिक्शनरी रो 1 कॉन्केट डेटा। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग, हियर NDF PD डॉट डेटा फ्रेम रो 1 इंडेक्स, ठीक है। ये हमने सपोज दैट एक डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है, न्यू डेटा फ्रेम। सिंपली एक यहाँ पे जो भी रो 1 उसमें एक रही हो, 2 रही है, जो whatever नंबर ऑफ रोज यू वांट टू एंटर यू कैन एंटर इन दैट डेटा फ्रेम। नाउ कॉन्केटनेट बोथ डेटा फ्रेम, तो कैसे करेंगे, डेटा pd डॉट कॉन्केट इज द कीवर्ड, एक क्या ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, NDF कॉमा डेटा, ठीक है। NDF ये है हमारा पहले वाला, ठीक है। तो हमने न्यू क्रिएट किया है, और डेटा क्या है, ये हमारा जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, दैट इज डेटा डॉट रीसेट, रीसेट लिखेंगे, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रीसेट इज अ कीवर्ड, अंडरस्कोर इंडेक्स, देन ब्रैकेट, ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है जो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर है वो हमारे चेंज करने के लिए। पानी बस लगा गया, वहां बारिश हो रही है बच्चों, बारिश हो रही है वहां पे, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है। नाउ NDF डेटा रीसेट, रीसेट इंडेक्स किसे यूज करते हैं, कॉन्केटनेटेड जो डेटा है विद डेटा एंड इंडेक्स इज यूज्ड टू रीसेट द इंडेक्स नंबर। अब क्योंकि डेटा इनपुट होगा, अब पहले NDF ऊपर आएगा, उसके बाद वैल्यू नीचे जाएंगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली जो ऊपर इंडेक्स इनपुट कर रहे हैं, तो हम उनको इंडेक्स रीसेट हो जाएगा, जो भी इंडेक्स नंबर होगा उनका रीसेट हो जाएगा, दैट्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आफ्टर एडिंग न्यू रो तो डेटा प्रिंट करेंगे, तो इस तरह का डेटा प्रिंट हो जाएगा, और नया नहीं है, ठीक है। द रो 1 इज एडेड टू एट द टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम, ठीक है। टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम जो है वो ऊपर यहाँ पे ये रो ऐड हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल फिक्स रहता है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। बस आपको चेंज क्या करना पड़ता है, ये PD डॉट कॉन्केट सेम रहेगा, यहाँ पे NDF जो हमारी वैल्यू है ये चेंज होगी क्योंकि वट एवर द नेम यू विल गिव, फिर रीसेट इंडेक्स ये भी सेम रहेगा, ड्रॉप ट्रू रहेगा, ठीक है। तो हमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं करने होते हैं, इट द चेंजेस आर जस्ट सिंपल, ठीक है, दैट विल डू यूज, ठीक है। नाउ इंसर्ट रो बाय यूजिंग LOC। अब हम अगर हमें LOC के थ्रू रो इंसर्ट करनी है, ठीक है, समझो। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एड अ न्यू रो 3 एट द एंड ऑफ द डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के एंड में हमें इनपुट करना है, हमने क्या लिखा, डेटा डॉट LOC लेन डेटा, लेन डेटा किस लिए लेंथ हमने बताया था, लेन विल यूज टू फाइंड
द लिस्ट और टपल या फिर किसी चीज की भी लेंथ, डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करनी हो, देन वी विल यूज लेन। तो यहाँ पे हमने डेटा की लेंथ फाइंड करनी थी, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड लेन डेटा। तो फॉर्मेट भी यही होता है, जो भी हमें लेंथ फाइंड करनी हो, सपोज दैट हमने लिया n इज इक्वल टू, अगर नंबर फाइंड करना है पहले से, तो ये लेन और ब्रैकेट में जो भी हमारा लिस्ट यूज होना है, डिक्शनरी यूज होना है, टपल यूज करना है, डेटा यूज, स्ट्रिंग यूज करना, जो भी वेरिएबल यूज करना है उसकी भी लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो यार LOC लेन ब्रैकेट में डेटा एंड देन इज इक्वल टू रो 3। रो 3 आप कहाँ से लाओगे, दैट यू हैव टू क्रिएट। ठीक है, समझे? उसके लिए आप डिक्शनरी के फॉर्मेट में आप ऑलरेडी क्रिएट करोगे, तब आप वैल्यू डालोगे। ये रो 3 हमने डिफाइन नहीं की है। ठीक है, पहले अगर आप क्रिएट करना चाहते, ऊपर जैसे रो 3 है, यहाँ पे ये रो 3 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो लास्ट में है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक समझा? ठीक, तो इस तरीके से वैल्यू क्रिएट होगी और इंसर्ट होगी। नाउ अब डिलीट रोज, अगर हम तो डिलीट करनी है। ठीक है, तो डिलीट रोज ऑपरेशन। ठीक है, तो ये तो सब में कॉमन है। ठीक है, अब ये डेटा क्या है, डेटा बिफोर डिलीटिंग। ठीक है, अब ये डेटा हमारा डिलीट करने से पहले था, डेटा फ्रेम बिफोर डिलीशन। अब यहाँ पे देखो, हमने बस कुछ नहीं करना है, डेटा ड्रॉप। ठीक है, डेटा डॉट, डेटा क्या है, वेरिएबल है, ये दोनों डेटा वेरिएबल है। डॉट इंडेक्स, इंडेक्स कौन सी रीड करनी है, 12 इंडेक्स रीड करना है। ठीक है, ठीक है, ये 12 इंडेक्स रीड करना है। यहाँ 11 था, इसके बाद का देखो ये 12 है, 113 से रीड। ठीक है, इन प्लेस ट्रू। ठीक है, मतलब इन जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें चेंजेस हो जाएंगे। इतना समझा? इसमें तो कोई समझने वाली बहुत ज्यादा चीज नहीं थी। क्लियर? ओके, अब ड्रॉपिंग मल्टीपल रोज, अगर हमें मल्टीपल रोज ड्रॉप करनी है तो उसके लिए क्या करना है, तो हमें यहाँ पर बस सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, डेटा डेटा डेटा, दीज आर द सेम वेरिएबल। ड्रॉप विल यूज इंडेक्स नंबर, हम डिफाइन करेंगे 10,11। अब 10 और 11 जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, 10 और 11। अब देखो यहाँ पे 10 और 11 डिलीट हो गई और यहाँ पे क्या बचा हुआ, 12 डायरेक्टली आ गया इंडेक्स नंबर। ठीक है, नाउ ड्रॉप अ रो, इट कंटेन्स सर्टेन वैल्यू। अब ऐसी रो डिलीट करनी है जो कुछ वैल्यू, कोई वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, डेटा 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 डॉट एस नेम, मतलब स्टूडेंट नेम हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, जो इसका मतलब होगा कि दैट शुड बी इक्वल टू सुधीर। सुधीर वाली रो आप डिलीट कर लो, जिसमें सुधीर हो। समझा? ये सिंपल, इसमें समझने वाली कुछ बात नहीं है। इन केस द वैल्यू इज सुधीर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब यू कैन रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम योर डेटा फ्रेम बाय यूजिंग डुप्लीकेट फंक्शन। ठीक है, तो ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपको डुप्लीकेट ड्रॉप कर देगा। समझा? इट विल रिमूव द डुप्लीकेट, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो रिमूव कर देगा। ठीक है, नाउ रीनेमिंग रोज। ठीक है, रो या कॉलम, कॉलम तो हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे रीनेमिंग का मतलब है कि जो भी हमारी वैल्यूज होंगी, ठीक है, रीनेम मेथड ऑफ डेटा रीनेमिंग अ रो एंड कॉलम। ठीक है, यू कैन यूज रीनेम फंक्शन, ये तो बता चुका हूँ मैं, शायद बता चुका हूँ ना। चेंज एनी रो कॉलम, रो कॉलम नेम इंडिविजुअल करने के लिए यहाँ पे हमने कहा कि डेटा पीडी डॉट, तो हम रीड ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो वही रहेगा। डेटा प्रिंट कर लिया, फिर रीनेम किया। ठीक है, अब रीनेम करने के लिए हमने क्या किया कि इंडेक्स 0 मतलब इज इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स रीनेम करने के लिए 1 1। ठीक है,
यहाँ पे देखो 0 को कोलन लगाते हैं ब्रैकेट में, इंडेक्स नंबर अगर हमें रीनेम करने हैं देन विल यूज parenthesis 0 1, देखो यहाँ पे 0 1 और उसकी जगह 2, बाकी सब ट्रू है, इन प्लेस हमेशा ट्रू रहेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो 0 जब वैल्यू डिलीट करेंगे यू कैन चेंज द इंडेक्स नंबर ओवर हियर बाय यूजिंग डेटा फ्रेम। ठीक है, in place you can say that कि in place will save the changes in the data frame। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्लेस की, रिप्लेस ऑल इंडेक्सेस इंडेक्स कॉलम नेम लेबल्स। ठीक है, तो उसके लिए हमने कॉलम नेम कॉलम जैसे हमने लिखा ABC और DF इंडेक्स। ठीक है, इट विल चेंजेस इंडिसेस विद 1 2 3 4। ठीक है, एंड कॉलम नेम ABC, तो इट विल चेंज कॉलम नेम्स विद ABC। यहाँ पे देखो कैसे, सॉरी तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बस इतना ही करना है, जैसे आप जितने नंबर ऑफ कॉलम हो आप इंडेक्स नंबर लिखोगे, जो भी इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखोगे दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर डेटा। कॉलम नेम सारे चेंज करने हैं, देन यू विल गिव वट एवर द कॉलम नेम यू विल गिव हियर, वो उसी ऑर्डर में सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगे। क्लियर? नाउ अब हेड और टेल की बात करते हैं। ठीक है, हेड और टेल का काम करता है, हेड टेल खेला होगा ना सबने। ठीक है, तो सेलेक्टिवली व्यू रोज वी कैन यूज हेड एंड टेल। अब आपका जैसे हम बात करें कि ये आपका डेटा है सपोज दैट, ठीक है, ये आपका डेटा फ्रेम है। ठीक है, अब अगर इस डेटा फ्रेम में सपोज दैट 20 लाइन्स हैं, 20 लाइन्स। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये हम हेड यूज करते हैं ब्लैंक, तो इट विल गिव ऑटोमेटिकली जस्ट टॉप 5 रोज, ऊपर की 5 रोज आपको आउटपुट देगा। और अगर हम केवल टेल यूज करते हैं, इफ आई विल यूज टेल देन इट विल गिव द बॉटम 5 रोज। ठीक है, 5 रोज बॉटम की, हेड भी देगा 5 रोज टॉप की ओनली। अगर हम कोई डिफाइन नहीं किया, आई हैव नॉट डिफाइंड एनी वैल्यू इन दैट। ठीक है, अगर हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा डिस्प्ले फर्स्ट 5 रोज, डिस्प्ले लास्ट 5 रोज। ठीक, अब अगर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया हेड 2, डिस्प्ले फर्स्ट 2 रोज, अगर तो स्टार्टिंग की 2 रोज आपको डिस्प्ले करेगा। इफ यू विल गिव टेल 1 देन डिस्प्ले लास्ट 1 रो। ठीक है, लास्ट की 1 रो नीचे से बॉटम से। इफ यू विल डिस्प्ले -2, ठीक है, इफ यू विल डिस्प्ले -2 देन ऑल रोज एक्सेप्ट लास्ट 2 रोज। इस चीज को समझना कि अगर -2 दिया जाता है तो आपकी लास्ट इट विल डिस्प्ले ऑल रोज, सारी रोज डिस्प्ले कर देगा, लास्ट की 2 रोज होंगी उनको एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, इफ यू विल गिव टेल -1 तो ये इसका उल्टा है। ठीक है, आपकी -1 मतलब टॉप की फर्स्ट रो रिमूव कर देगा, एक्सक्लूड करके बाकी रोज डिस्प्ले करेगा। समझा? ठीक है, अब थोड़ा इसका हाँ वही है, सेम है, बस ये है कि डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे पहले चैप्टर में आपको लिस्ट और टपल के थ्रू ये पढ़ाया था। ठीक है, नाउ सी, अब यहाँ पे हेड देखो जैसे डिफाइन किया गया है, हेड डिफाइन किया, ऊपर की 5 रो डिस्प्ले हुई, 2 ऊपर की 2 रो डिस्प्ले हुई। ठीक है, फिर हमने टेल ब्लैंक दिया तो टेल की टॉप बिलो 5 रोज डिस्प्ले, लास्ट 5 रोज। टेल 3 दिया तो लास्ट की 3 रोज। -4 तो देखो -4 में क्या, टेल में क्या किया है, ऊपर की 4 रोज रिमूव कर दी, 0 1 2 3 नहीं है इसमें। ठीक है, हियर 0 यहाँ पे जो ऊपर की रोज है 0 1 2 3 रोज नहीं है। ठीक है, तो ये 4 रोज ऊपर की हटा के एक्सक्लूडिंग 4 रोज। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे हेड -3 करते हैं, सी लास्ट की 10 11 और 12 रोज नहीं है। ठीक है, समझा? तो इस तरीके से हमारी ये टॉपिक आपका खत्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे इन डेटा विजुअलाइजेशन इन पांडास। तो this all the things will use in graph representation. Clear?